Hey, am I audible? Can someone confirm? Hey, am I audible? Can someone confirm? Yes, I am. I am audible. Let's wait for everyone to join and then we will get started. Hey, Praveen. Hey, Preetham. What's up? Just waiting for everyone to join, then we will get started. Okay, we have. So there's a Google form link in the description as well as on the pinned comments. You can check it out. We will be reviewing resumes on a randomized way. So nothing like first come first serve. So cool. Okay. Bring Striver's SD sheet to GFG's practice platform. No. How can we get your resume reviewed? There's a Google form linked on the description as well as on the pinned comments, so you can definitely put that in. Cool. I think time over here. The time is 7 o'clock. I'm not sure what the time is there, but yeah. Sorry, not 7. 6:30. It is 6:30 over here. I'm doing well. Yeah, I'm doing pretty amazing. So what I'll do is I'll share my screen, and let me see if we have. Okay, we have how many responses do we have? So can you please fill up the Google form link which is there? I have 4 responses. I'll start when I have 10. Okay. I'll start when I have 10. So there's a Google form link on the in the description as well in the pinned comments. So yeah, I know it's 10 p.m. there. Come on. मुझे पता है यहाँ पे 6:30 बजे तो वहाँ पे +3.5 करके 10 ही हो जाओगा. How's the temperature there? The temperature here is 8 degrees. What's the temperature? ये नहीं पता है मेरे को कितना है temperature देखते हैं. Delhi temperature of 24 degrees in Delhi. Okay, waiting for you guys to fill up the form. Let me see how many. Okay, we have 10 responses. We have 11. Cool. I think we should get started. So let's get started. I'll just quickly share my screen, or maybe the window, or maybe the Chrome tab, not the entire screen. Oh no, I don't want to share my entire screen. Because I have a lot of data. Oh, why am I not able to share the different window? No way. It doesn't allows me to share the different window. What the hell? स्ट्रीम वाले बोर आ गए हैं क्या? बगल वाला विंडो क्यों नहीं शेयर करने दे रहे? रुको फिर चेक करने दो. क्या बात हुई है? एंटायर स्क्रीन या फिर क्रोम टैब शेयर करो? नो वे. चलो एंटायर स्क्रीन करते हैं. So okay, so please make sure a quick request. Please make sure you hide your phone numbers. I will not be responsible if someone gathers your number and does anything. Please make sure you hide your number. Okay, just in case you have uploaded and you want to, you can definitely. I'm allowing response editing. So just in case you want to edit it, you can delete your response as well. So please hide your this thing. I'll not be responsible. Cool. So we have 34. So let's do random. Okay, 22. So random is what I'll be using. If you see over here, we get random 22. So 22 row is what I'll be reviewing at first. 22. Okay, so Yash wants to get his resume reviewed. He says PhonePay, Microsoft, Amazon is his 3 companies that he's looking forward to.
He says he wants to interview for SD1. He has an experience of 10 months, and I've asked him to write 2 3 lines, similar to what you usually write when you send a message on lead code. So he has written, solved 350 plus problems on lead code, currently working in Accenture as an application developer associate, also done projects in Android and ML. First of all, if you're writing a LinkedIn message, this has to be much more, like it has to be much more than this. You can't just write, hey, listen, I've solved this, I've done projects on this. You have to describe your projects, maybe in couple of points. You have to describe your projects, what you have done, what current work you are doing. That is very important. Solve 350 problems. Instead of that, you can probably twitch it and write that you're well versed in algorithms. uh, the You can check out my lead code profile. It stands as a proof that I'm actually very good at DS algo. So don't just write that I've solved 400 problems, 500 problems. Try to frame a sentence whenever you are texting someone. Try to frame a sentence so that it is better. Okay, cool. So I'll open your resume, Yash. Cool. So Yash has his resume. Something to observe on a first look, pretty clean. So one thing that I've seen in the current generation, what they do is they use these fancy templates. Please stop using the fancy templates where you have red, blue, Neela. You will see those kind of resumes. So try to keep resumes which are very, very clean. Black and white works absolutely perfect. Don't think that people are going to say ki ye kya hai bana diya. This is a perfect template if you want to use for resumes. Okay, so one thing I want to mention is, if you are making a resume and tomorrow you're going to apply, because what happens is, for an example, let's assume you're applying for something like a Google. Okay, and you just give them this resume. So usually the Google recruiters are not from India. Maybe sometimes will be mapped to a recruiter who's outside of India, right? So it's better that if you add a +91 over here whenever you're attaching your phone number. That is very, very important. Okay, again, linkedin.com, a bit of probably you can use the logos of LinkedIn and lead code. That will look much more better. It's just an HTML thing that you have to do. So okay, again, this line is something which I do not recommend people to write, because you are not in finance or something. We are applying for software engineering roles, and these lines hardly matters unless until you are something, you have done something amazingly well which you want to be highlighted, then it is okay. But if I read this line, it is something like a motivated individual looking to work in a creative and challenging environment using cutting edge technologies where I can constantly learn. Okay, what should I do of that? That doesn't make sense. Everyone wants that, right? Unless and until you have something which is a standout, and you want to tell the guy that, hey, you have to read this before you get into my resume, then only you add this line. Otherwise, try avoiding this motivational wala content. Okay, professional experience, again, a good tag used. Application developer performed automation testing using the Tosca test suite and taken care of all the automated. Okay, I understood. Automated 45 plus test scripts. Okay, cool. Something I liked over here was he included numbers. Now, remember one thing, whenever, guys, whoever is doing in the comment section, please pick mine, please pick mine. It's not important that I pick yours. You have to hear my points, very, very important. Like whenever I'm reviewing a resume, try to gather all the points, and if you integrate those points in your resume, you will have a perfect resume. It's about just hearing out the points. Okay, so remember, if you are an experienced guy or if you have an internship experience, it's very important to add points. You just cannot write that I did an internship, I made a website. That is something which is a, a big cross. If you're creating a resume, the first thing that you should keep in your minds is numbers. Because before, assume you have applied to a role which is globally available. So the first step is the AI will reject your resume if it doesn't find proper data points. So something like a 45 plus, four different. So like improved in saving 20% time and resources. Now, do not just add 20%, 30% if you don't have an idea, because when you go into an interview, in an interview, what people will do is people will definitely ask you, the interviewer will ask you, okay, how did you improve 20%? How did you measure 20%? Is there a graph? What tool did you use to measure 20%?
You cannot abruptly write 20% unless and until you have an idea about, because I'm very much sure that if in an interview, if you go and write saving 20%, if I'm the interviewer, I'm going to grill you. How did you save 20%? Tell me the tools that you use to measure. What did you apply in the code that measured that you are saving that time? So please be careful when you write these lines. Do not, my screen is blurred. No, the screen is perfect. The screen is perfect. So just make sure you do this. Okay. Work directly. Good knowledge can be truncated into 2 3 points. A bit too much written, which is not required. Projects. Okay. Flood disaster. Very, very good. I absolutely love this way. So if you're adding, I'll not open the video link. पता नहीं कौन क्या गलत video अगर भेज दिया होगा तो you should add a video if you're doing a project which you want people to maybe a 2 minutes or 3 minutes walkthrough video. Because what happens is, if you are hosting it maybe in some place, it might be broken, or if you're hosting it publicly, someone might go across into that public link and do some chhed to usse better hai ki just create a video where you walk through the project, so that this is a very, very good indication. And do not make a video like 10 minutes. Try to keep the video which is kind of 1 minute, 1.5 minutes. That is more than enough, because no one will have time like 7 8 minutes. A very, very big plus is adding a video. Okay. Developed an effective real-time flood. Okay. Built web app using Python. Try to bold mark this. Use random forest. Okay, understood. Machine learning पे किया है. E-wellness, a health tracking system developed in Android application. एक चीज याद रखना, whenever people look at your resume, people don't care what you have made. What people care is, do you have an experience in making whatever you make? No one's going to judge you if you make a normal e-commerce website. What matters to us or to recruiters is you have a decent experience of writing code. It can be any level of code. It can be an e-commerce website, it can be a writing code in Amazon. If you have an experience, what happens is it helps you in your longer run, because if you know how code looks like, how to debug things when you're stuck, how to read Stack Overflow, those things are important. Okay. Again, something which I'll uh, stress a bit is try to add 2 projects. 3 projects is something, if you're not prepared, you might be grilled in an interview. You might pass the resume review round, and you might have an interview. But in interview, the interview तो ले लेगा अच्छे से अगर 3 projects ऐड कर रहे हो. क्योंकि usually what happens is, when you build projects, you usually remember the last one which you have built, or maybe the second last one at maximum. You don't usually recall the third last or the fourth last one which you built, because it's usually in the, like, the date that I see is September 20. I can assure you that you will hardly be remembering the crisp points of those. Like, you must be remembering it on a very higher level. But if I grill you down on this project, I am very concerned that you might not be able to. You might be, but I'm saying you as a caution, if you have a lot of projects, try to add those projects which are very, very recent, and which you have a proper idea about. If you're grilled, you should be able to answer it. If you know about 3 projects, absolutely okay to write it. But if you're not confident about anything, just don't add it for the sake of adding it. Okay. Academic qualifications, I loved it how you placed it at the bottom, because you're an experienced guy. That is good. You can omit this, it's not required. I think this much will do. Skills, again, very well written. I can get an idea about what you are into, what experience you have. Achievements, and leadership experience. Win of college level, smart, solved over 500 DSA, contributed to open source. College level. Now you write a leadership experience. So someone might think, what leadership? Because I was looking for what have you done on a leadership front, maybe an hackathon. So if you're writing leadership, this line could be written in a much better way. Something like, I was the team lead of the team which won the college level hackathon, or something like this. Because if you're writing a leadership thing, it's very heavy word. So try to include data points which will impact, like, which will explain the term that you have added it. Okay. Good format, you can, you can use the format I use. I generally use this format. It's too much. So you can probably go over. भाई कितना सारा resume review क्यों लिख दिया मैंने. So if you write resume, भाई कितने ads आते हैं. So if you go over here, you'll get the format which I use. So this is my resume. I just changed my name and the phone number. I blurred it. This is kind of
somewhere near about to my resume. This is the format I have used for all my interviews. So you can definitely use this. You'll find the code link over here. So maybe you can take the latex code and use it in overleaf.com, or there's a lot of latex website which will build you this resume. So you can try this format if you wish to. I absolutely love these kind of formats. Not me, even I talk to a lot of my colleagues, they absolutely love something which is clean, to the point, and nothing fancy, because that is what we expect you to give us. Okay, cool. That's about you. I think it's a pretty decent one. I will not open the lead code. I would have loved if you'd have given me an idea about okay, you have given over here, that's pretty good. Probably something which I will focus a bit more nowadays is, because you have to go with the trend, with so many people doing lead code, with so many people doing GFG. What happens is people are solving 300, 400 problems. You find every next person solving 400 problems. So probably something that might make you stand out is, if you participate in lead code contest, you can write the ratings of your lead code contest. Or maybe someday you solved all the 4 contests. Maybe you participated in 15 contests, and out of that, in 5 instances, you are able to solve 4 out of 4 problems in that contest. So you can actually write, you can frame an achievement something like this. I have there have been 4 instances or 5 instances where I've solved 4 out of 4 problems in lead code contest, in the last 10 lead code contests, or in the last 15 lead code contests. Now these are things which attracts, because 300, 400 is okay, but if you write something where you have competed with other people and you have stood out, those things take the eyes of, not my, even the recruiters, or even someone is referring, he'll see, hey, he's doing 3 out of 4, he's doing 4 out of 4 in a live contest, not in some virtual environment where he's watching a video, he's solving it. So these things are very, very important. Keep in mind, okay? Remember this point. Does everyone understand, if you're doing lead code or GFG, which points can be added in an achievement? Does everyone understand? थक गया मैं. Okay, cool. One done. Let's have the next one, which is math.random. How many we have? We have 100. Okay, cool. Let's have 100. Okay, 21. Lucky number. Who's at 21? Shubham. जल्दी, अरे जल्दी, जल्दी, जल्दी करके क्या फायदा होगा? अगर मैं यहाँ पे 50 रेज्यूमे रिव्यू कर दूं, कुछ सीखोगे? इससे अच्छा मैं 5 करूं. I'll do 5, but I'll do 5 in depth, so that you get every point clearly, so that you know where you can improve, right? यार तुम भी तो यही लिखोगे, तुम भी तो यही कुछ लिखोगे ना. So if you take the points, it's good, right? I don't need to do 50 resume reviews. If I do 5, but if I do a crisp review of 5, you get a decent idea. Try to take the decent idea instead of saying मेरा करो, ठीक है? Cool. Okay, we have 21. We have Shubham. He says he's targeting for Amazon, Microsoft. Now, please remember one thing, guys. If you're targeting Google, Amazon, Microsoft, these kind of companies like the FANG or the MAANG level of companies, these are gonna focus on your DSS skills. Projects, if like okay bhi hai, to you will pass out. But if you're planning for startups, DSA can be okay, but the projects have to be good enough. Okay? So, okay, sir, I'm a hardworking candidate with a good DSA. You don't need to write these things. Sympathy लेने की जरूरत नहीं है. Straight to the point. I'm good at DSA due to so and so. Straight to the point. Hardworking, I'm super motivated. ये लिखने से नहीं होता है. Again, the same template which I use has been used, which is again very good. You can definitely use this template. Miss your aim है, मे बी कभी करेंगे. अभी तो ऑफिस से आया, थक गया. Okay, cool. On the first front, looks a bit empty. Looks a bit empty on the first. Looks like थोड़ा मुझे यहाँ पे भी मतलब ये अखड़ गया आंख में. अगर देखोगे ये वाला चीज मुझे थोड़ा अखड़ गया, तो ठीक है. अगर मैं फ्रंट एंड के लिए हायर कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सोचूंगा, बट ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं. सो इट्स गुड, इट्स प्रॉपरली लुक्स परफेक्ट, बट थोड़ा सा इंडेंटेशन पे काम कर लेना. गिटहब है, लिंक्डइन है, Gmail है. I'm not sure what will this open, but hopefully it opens my Outlook or Gmail maybe. Again, something very good. +91. सब अपना phone number दे रहे हैं. CGPA is good. Again, very, very important point. Whenever you are writing your education, a lot of people tend to write July 2022 present. Do not write present. Write your ending year.
write your ending year. Do not write present. I repeat, write your ending year, because what happens is when you get into these companies or their hiring process, no one is going to count he's doing btech, he's going to take like 4 years, so 2020, 2021, no one is going to count that. So you have to write 2024. Okay. Something class 12th, again pretty decent, so don't no need to write February 2019. You can just write February 2020 is when you gave your class 12, and you can write the percentage. Perfect. Experience, looks like a lot of experienced people have joined today. TCS software internship kara hai, theek hai. I worked on a company provided issue statement where we needed to create software for laboratory hardware and software use. Again, uh, I don't find anything written over here to create software for laboratory hardware and software use. ऐसे तो मैं बोल दूंगा I work in Google for Google Cloud and etc etc. No, लैबोरेटरी के लिए काम किया, हार्डवेयर के लिए काम किया, सॉफ्टवेयर के लिए, अरे क्या काम किए, वो कहाँ है, वेयर इज इट रिटन? सो फर्स्ट लाइन can't be, because what happens is no one has that much of time to read all the 4 points. I need front loaded data should be front loaded. What do you mean by front loaded? Means ऊपर ही सब कुछ मिल जाए मुझे, समझ में आ रहा है? चलो, I primarily worked on the project's backend using this. Again, क्या कियो, काम कियो, लेकिन क्या कियो, कहाँ है? It was decided to provide separate access points for, नहीं, it was, ये सब क्या है? तो मतलब कचरा भर दियो, ये क्या लिख दिया है? ठीक है, तुम अब अगर if I start writing कि I was working in Amazon they gave me a separate laptop because I had to code myself. Will that make sense? Like, how does this make sense in your experience? नहीं यार, प्रोजेक्ट, अगर आई थिंक ये क्लिक पता है, अच्छा खुला, चलो कोई नहीं, खुला तो सही, थोड़ा सा समझ रहे हो? ये चीज थोड़ा बेटर कर लेना ब्रो. टू डू ऐप इज नॉट अ प्रोजेक्ट. To do app is not your primary project, man. If you're writing your primary project as to do app, please do not. Okay. With the aid to do this, you can create tasks with various labels, update them, mark them as finished. No. YouTube content creator for code chef. सैंपल, अरे एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर हो, सैंपल वीडियो दे दियो. अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, if you're a content creator, what you should do is probably you can make a Google sheet or Google Doc where you list all the videos that you have made, and over here you can find all the videos there. That's how you give it, not sample video. क्या कर रहे हो? ना और नहीं, और नहीं हो पाएगा वो. ये ऐसे रिज्यूमे मत बनाओ, शुरुआत से पहले ही भाग जाएगा. 111. ओके, 111 में कौन है? 111 में कौन है? आयुष लूथरा. सब अमेज़न गूगल, ये क्या देख लिया मैंने? चल, अमेज़न गूगल समझ में आया था, गूगल के साथ एक्सेंचर लिख रहे हो, क्या दिन आ गए भाई? SDSEMTS. I'm HIT Shiroya, finally pursuing my B with the CGPA and love to solve challenging problems unsolved more than 450. DSA visualizer is okay-ish, but the moment you're writing your first project as to do app, I'll close the resume. So your first project has to be good. Simple as that. You can have anything as your secondary project. First project has to be good. It can't be to do app, right? It can't be a single page project. It has to be a project where you have done something. टू डू ऐप क्या है यार, जावास्क्रिप्ट में कितना देर लगता है? 20 मिनट, 30 मिनट, 40, 1 घंटा एड मैक्स, अगर तुम जावास्क्रिप्ट आता है अच्छे से. टू डू ऐप, अच्छा 115 था क्या? नहीं 111 था, सॉरी 111 था, 111, सॉरी आयुष लूथरा. अमेज़न गूगल एक्सेंचर, ठीक है, ओके. 111 था रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? बप Accenture, I'm a BCA final year student. I'm good at DC. I've done more than 600 questions and I'm consistent for more than 200 days. तुम लोगों को मैसेज लिखना सीखना पड़ेगा. मैसेज बहुत बुरा लिखते हो. Learn writing messages. ओ भाई, मतलब ठीक है, क्लीन में समझता हूँ, इतना भी बैक, थोड़ा सा लाइंस थोड़ा बेटर कर सकते हो. क्या रेड
क्या है मतलब एजू को बोलोगे रेड पे रखने का, केशन को बोलोगे ब्लैक पे रखने का, टेक मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि पहला 3 ऐसे रिज्यूमेस पता है मतलब क्रॉस हो जाते हैं, स्ट्रेट अवे क्रॉस हो जाते हैं। सो प्लीज वर्क ऑन दिस, प्लीज वर्क ऑन दिस। यार इन बीसीए तो आई रेकमेंड बीसीए करके तुम Amazon गूगल तो नहीं आ सकते हो unless until you're highly talented. So try to get into something like MCA because MCA का जो डिग्री है that's considered equivalent to बीटेक काइंड ऑफ इक्विवेलेंट माना जाता है, तो यू कैन अप्लाई। बीसीए करके नहीं होगा, एमसीए करो फिर रिव्यू करते हैं। पहले तो तुम थोड़ा सीख लो सब चीज़ें, ये स्पार्क फाउंडेशन के घोटाले से पहले निकलो। सी प्लस प्लस छोटे में लिखोगे, जावा बड़े में लिखोगे, क्या ऐसे ऐसे नहीं होता ब्रो, ऐसा नहीं होता ब्रो। ओके वी हैव 119 31 Who's that 31? अरे स्पार्क फाउंडेशन एक घोटाला है ये, मतलब सबसे महा महा घोटाला है वो। 31 था क्या? 31 Jatin. Jatin is targeting Amazon. He has no other companies as aspiration. वीडियो मत बनाना Amazon जाके। Currently pursuing MCA from Graphic Era. It's a good private college. Luxurious. Graphic Era काफी friends है मेरे वहाँ। ओके ओके, हाँ ये ग्राफिक एरा का ये स्टैंडर्ड पैटर्न है आई गेस। अगर ये ऑफ कैंपस दे रहे हो तो थोड़ा बेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। जतिन राउटेला, मतलब मुझे तुम्हारे घर नहीं पहुंचना है, समझो जब रेज्यूमे बना रहे हो, पोस्ट ऑफिस जरूरी नहीं होता, उत्तराखंड इंडिया काफी है, दैट्स इट। उत्तराखंड इंडिया शुड बी मोर देन एनफ। घर का पूरा गली नंबर फ्लैट नंबर जरूरत नहीं होता है। alternate this is good again, +91 can be added। काफी यार मतलब शिट टेम्पलेट है। फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट पहले प्रोजेक्ट रखना है, फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट कौन लगता है पहले? यहाँ आधा रिज्यूमे मैंने देख लिया, मुझे अभी तक कुछ काम का नहीं लगा है। ये शायद मुझे थोड़ा सीजीपीए थोड़ा बहुत ठीक लगा है, बाद बाकी मैंने आधी मतलब यहाँ तक देख लिया मैंने, पूरे रिज्यूमे में मुझे कुछ नहीं दिखा है अभी तक, कुछ नहीं जो मुझे डेटा पॉइंट दिख ही नहीं रहे यहाँ तक कि मैं कुछ भी करूँ कुछ तो डेटा पॉइंट दिखे कि मैं बोलूँ कि भाई हाँ कुछ है। ये कैसे मानूं मैं तुम्हें डेटाबेस ओरेकल डीबी आता है? पहले इसीलिए पहले प्रोजेक्ट बताओ, सर मुझे समझ में आए काम किए हो, फिर मैं जिस्ट, मुझे लास्ट में जब मैं रिज्यूमे खत्म करूंगा तो मुझे जिस्ट आ जाएगा कि हाँ इसके पास ये स्किल्स है। मेजर प्रोजेक्ट्स, ये क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ है, लिंक कहाँ है? अरे ऐसे तो मैं भी लिख दूं मैंने गूगल सर्च इंजन बनाया है, कहाँ लिंक दो यार, लिंक देना पड़ेगा ब्रो, यू हैव टू गिव लिंक, ठीक है। टी शर्ट कहाँ है, टी शर्ट स्टोर वेबसाइट तुम्हारा। स्ट्रेंथ्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या करूंगा मैं वो एटीट्यूड लेके? सोशल इंटरेक्शन, हार्ड वर्किंग, टीम प्लेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, कॉम्पिटिटिव, काम का कोई चीज नहीं है, मतलब जितना भर सकते हो फ्री का भर दियो, थोड़ा मेहनत करो यार। बाकी रेज्यूमे देखो, बाकी रेज्यूमे देखो और तुम्हारा रेज्यूमे देखो। अच्छा दिल पे मत लेना यार, मतलब आई से एवरीथिंग इन अ वेरी लाइट हार्टेड मैनर, तो कोई दिल पे मत लेना यार, प्लीज प्लीज। अगर कोई दिल पे ले रहा है तो प्लीज दिल पे लेके कोई लिंक्डइन विंक्डइन पोस्ट मत कर देना। ओके इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग 116। अरे हाँ यार स्पार्क फाउंडेशन का घोटाला बोल दिया, डिफेमेशन ना कर दे कोई मेरे को। कीप लिंक्स प्रोमिनेंट एंड या द इट्स इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम लुकिंग एट अ रेज्यूमे, वो होता है ना मतलब, अरे वो कहावत है ना, क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप रेज्यूमे देखते हो तो अब ऊपर से ही गंदा फीलिंग आ चुका है, अब जितना भी मेकअप आप नीचे कर लो तो नहीं होता ना, ठीक है। So Abhishek Kumar, okay, it's interesting. He is targeting media.net, okay, but he's targeting MAANG developer. Currently work as a web dev. So I'm assuming he's not going for the SD role because अगर media.net में SD जा रहे तो competitive programmer होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है उसका इंटरव्यू निकाला। So you're going as a developer, तो I'll take your resume as a developer, ठीक है। My pursuing BTech, my tech area is MAANG and currently working as a developer at IIT Delhi startup.
कोई तो बोला तो मेरा एक्सेंट चेंज हो गया। नहीं भाई, एक्सेंट तो वैसा ही है। थोड़ा शायद चेंज हुआ होगा क्योंकि यहाँ के लोगों से ज़्यादा बात करता हूँ, तो शायद थोड़ा-सा इम्पैक्ट दिखेगा, बट आई बीन ट्राइंग टू मेंटेन द सेम वन। ओके, 713 वॉचिंग, गुडनेस मैन! इतने लोग आ गए। Okay, no, I will not click on any of the links because I don't want any. I have. I was doing one of the resume reviews. I still remember, in some platform. उस बंदे ने क्या किया था ना, उस बंदे ने जबरदस्ती का एक फेक रेज्यूमे बनाया था और लिंक्स पे गलत गलत चीजें दी थी और लाइव खुल गया वो सब चीजें। तब से मैंने लिंक्स खोलना बंद कर दिया। ऐसा डिल वो दिखता है कि लीड कोड का लिंक है तो ही खोलता हूँ, नहीं तो नहीं। ओके, अगेन आई थिंक टू स्मॉल रेज्यूमे, बट ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे जज नहीं करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। आदित्य लीड कोड जीएफजी सही है, ऊपर का तो सही है, ऊपर का सही है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पढ़ते हैं। 221 प्रेजेंट मुंबई, सिस्टम इंजीनियर है। I've developed a desktop application using Java to automate the process of compliance and preventive action reports for weekly activity. Okay, cool. Manual level, okay, preventive actions, compliance and preventive actions. ठीक है, this is good. I can understand this. You have worked something which is on an internal basis. Highlighted critical gaps present in the compliance and preventive actions corrective process for which the root cause tracked back to a miscatch of process perform. है ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यू कैन जस्ट राइट कि तुमने पकड़ा है और तुम काम कर रहे हो। आई बिल्ड वेरियस स्मॉल स्केल। ठीक है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें बहुत इंटरनल काम दिया गया है टीसीएस पे, तो यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड मच, व्हिच इज ठीक है, व्हिच इज नॉट अ बिग इश्यू। लेट मी सी इफ यू हैव डन समथिंग आउटसाइड ऑफ योर जॉब। सीजीपीए मिसिंग है। इट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट सीजीपीए, यू कैन नॉट स्किप। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं दिखाऊंगा ही नहीं अपना सीजीपीए, वो नहीं हो सकता है, तुम्हें लिखना पड़ता है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स, प्रोजेक्ट्स देखते हैं। आई एम होपफुल कि प्रोजेक्ट्स ब्लॉगिंग साइट बनाए। एप्लीकेशन यूजर्स ऑथ वन, अगेन थोड़ा पॉइंट वाइज लिखोगे तो बहुत अच्छा होता है। इट अलाउज क्रिएशन, रीडिंग, अपडेटिंग, डिलीशन ऑफ द यूजर प्रोफाइल्स। यूजर कैन आल्सो डू द सेम। अगेन मे बी पॉइंट वाइज विल बी मच बेटर बिकॉज इट्स नॉट रीडेबल। आई वांट इट टू बी पॉइंट वाइज बिकॉज इट गिव्स मी आइडिया कि हाँ, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, चैट भी पढ़ लो। अरे हाँ, पढ़ रहा हूँ भाई। रॉन्ग लिंक ओपन है। अरे कोई नहीं, लिंक, अरे ठीक है भाई, लिंक खुल गया ना, शांति रखो। अच्छा, रॉन्ग लिंक किससे खुला? अबे सही तो, अच्छा सॉरी, ये खोलना था क्या? कोई नहीं, वो तो मैंने आधा रिव्यू कर दिया था उसमें। अभिषेक कुमार का खोलना था, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, खोलते सही लिंक खोला है मैंने। ठीक है, उसका आधा रिज्यूमे हो गया था, रैंडम फंक्शन। ओके, दिस इज अगेन वन ऑफ द फेमस टेम्पलेट्स। इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड इन एनएसआईटीज एंड दिल्ली के तरफ के कॉलेजेस में बहुत ही ये टेम्पलेट यूज होता है। एनएसआईटी का तो आई थिंक ऑफिशियल टेम्पलेट है शायद ये, आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट कोई तो कॉलेज का एक ऐसा ही सिमिलर ऑफिशियल टेम्पलेट। बहुत सारे जो आईआईटीज होते हैं, एनआईटीज होते हैं, तो इनका एक ही ऑफिशियल टेम्पलेट होता है, सो दैट हर बच्चा जाके अलग अलग रंग बिरंगा ना करके आ जाए, तो एक ऑफिशियल टेम्पलेट होता है। तो इफ यू आर इन अ कॉलेज, यू कैन ब्रिंग दिस ट्रेडिशन कि तुम्हारे कॉलेज में सब एक ही टेम्पलेट यूज करेंगे। तो उससे क्या होता है ना, कल को कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसा रेज्यूमे लेके चला है कि बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ जाए कॉलेज का ही। तो इसलिए यूजुअली पीपल ट्राई टू हैव अ सिमिलर टेम्पलेट। ठीक है, ऊपर से अच्छा लग रहा है, झूठ नहीं। परसेंटेज पता नहीं, परसेंटेज कौन से कॉलेज में होता है, सीजीपीए होता है तो आई थिंक सीजीपीए लिखो, क्योंकि यूजुअली सीजीपीए ही देखते हैं लोग। आई एम नॉट श्योर होता होगा तुम्हारे कॉलेज में। ओके, स्कूल से स्किल्स, सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट, पाइथन है। टेक्नोलॉजीज, लाइब्रेरीज, React, Mongo, Express, Bootstrap, CSS, Tailwind, CSS. ओके, ओके। क्लाउड में AWS आता है, गूगल क्लाउड आता है। ओके, मतलब दोनों आता है अच्छे से। ओ भाई साहब, whether this is my area of expertise, क्योंकि मैं इसी में काम करता हूँ। टूल्स में ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, ठीक है, चलो। लेफ्ट में मुझे समझ में आ गया तुम्हें क्या आता है। अब मैं देख रहा हूँ डेटा पॉइंट्स है कि नहीं। डेवलप्ड रिएक्ट, वर्कड ऑन, अगेन मतलब क्या काम किए थोड़ा सा इधर गिटहब में रखो अपने। अगर इंटर्नशिप पे, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटर्नशिप,
try to keep these things on your GitHub profile. What did you do in internship? Or for an example, maybe create a small video when you leave, and you can just upload it onto your YouTube channel and keep it as unlisted or private for that reason, so that you can just link it to your, because it's very important if you're doing an internship, because after the internship you might not have access to those files. So whatever work you have done, maybe just take the permission of the manager and just do a small video recording and tell him that I'm going to use it on my resume. Just take a official permission from him, and you can just upload it on a drive or something, and you can use that as well. So that's something which you can always do in order to demonstrate what you did in your internship. It's a very good idea. Okay. Cool. इन्फो विद टेक में भी डेवलप्ड मॉड्यूल्स, अगेन मतलब डेटा पॉइंट्स तुमने लिख बहुत चीज़ें दी हैं, बट प्रूफ नहीं है कोई चीज़ का, प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है। तो राइटिंग इज ओके, बट वर्क डन जावास्क्रिप्ट टू डीबग वेबसाइट, मतलब वर्क डन जावास्क्रिप्ट टू डीबग वेबसाइट, हाउ डज इट इवन मेक सेंस? मतलब ठीक है, डीबग वेबसाइट की वर्क डन जावा डजंट कोरिलेट्स। थोड़ा सा बेटर इसको लाइनिंग कर सकते हो, एंड थोड़ा डेटा मतलब प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए यार, प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है। शेपाई के 3 इंटर्नशिप किए हैं, तो अज्यूमिंग ओके, अगर नहीं खोलूँगा, नहीं खोलूँगा। ओके, लाइक रिएक्ट मूवी यहाँ पे लाइव्ड है, तो ये सही है। इट इज़ अ फ्रंट एंड बेस्ड ऑन रिएक्ट। I I see the resume is good. I'll not say the resume is bad. The resume is good. If you're going for a web developer, I think you will have a very decent chance. You'll have a very decent chance, because what I see is whatever projects you have made yourself, you have proof of work, which is very good. So I think it is pretty decent. थोड़ा formatting सही कर लेना ये space face का, but बाकी तो मुझे मतलब I see कि पहला प्रोजेक्ट तो देख के मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये वाला मैंने देखा हुआ है ऐसे। तो इट लुक्स गुड, मतलब यू हैव डिसेंट एक्सपीरियंस। तो डेवलपर हो कि नहीं वो तो इंटरव्यू से पता चलेगा, बट ठीक है, इट्स अ रेज्यूमे व्हिच विल गो थ्रू टू एन इंटरव्यू फॉर श्योर। तो या, that will be my review for this. Let's go on to the next one. Random. How many are there? 183 now. Okay, 106. 106. Nikhil Gupta, PDM, Swiggy, Flipkart. Okay, I've started looking to start my professional career as a full stack developer so that I can improve myself. Okay, इस बार सही खोलना चाहिए। हाँ, सही खोल रहा है। हाँ, एटीएस मतलब जो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एटीएस का फुल फॉर्म क्या था, मैं भूल जाता हूँ आजकल, तो इतना डेवलपमेंट हो गया ना। एटीएस क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, बहुत कुछ है, हर एक जगह अलग अलग है। तो एटीएस का बेसिकली काम होता है कि वो नंबर्स देखता है। जैसे अगर रिक्रूटर ने, क्या होता है ना, वो एटीएस में ऐसा होता है, रिक्रूटर लिख देता है कि अपन को चाहिए थोड़ा जावा होना चाहिए उसके पास, अपन को चाहिए कि उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो ट्रैकर क्या करता है, ऑटोमेटिक तुम्हारे रिज्यूमे में छानता है जावा है कि नहीं। तो यूजुअली जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, उसमें जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं, रिक्वायरमेंट्स, तो ट्रैकर में वही डले होते हैं। तो वो क्या करता है, पहले फर्स्ट राउंड ऑफ फेज में वो छाड़ देता है अगर तुम्हारे रिज्यूमे में जावा नहीं है। क्योंकि अगर उन्हें जावा डेवलपर चाहिए तो वो जावा रिज्यूमे में माँगते हैं। एंड इफ यू हैव सी प्लस प्लस, वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे जावा कहीं तो है। समझ रहे हो? अगर बहुत सारे में वो होता है कि टायर 1 कॉलेजेस से ही हम लेंगे, तो वो एटीएस ऐसे डिज़ाइन्ड होता है कि वो टायर 1 के कॉलेजेस का नाम इनपुट कर देते हैं। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में वो नाम नहीं है, तो वो ऐसे ही कट जाता है। सेम सीजीपीए में भी होता है, ठीक है? दैट्स हाउ इट वर्क्स। भैया व्हिच प्लेस आर यू इन राइट नाउ? अपन पोलैंड में। आई एम इन वार्सो एज़ ऑफ नाउ। ओके, अगेन मतलब थोड़ा निकलो यार, मतलब फिर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साफ-सुथरा रखो, बट इतना भी व्हाइट और ब्लैक, थोड़ा बेटर यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बेटर टेम्पलेट्स है व्हाइट और ब्लैक के भी। ओके, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, 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 गवर्नमेंट साइंस। ओके, सीजीपीए भाई साहब ने पढ़ाई नहीं की है। देखो अगर ऐसा कभी है ना हालत, ये हटा दो यार, 2017 वाला हटा दो। क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, तुम पढ़ाई में तो अच्छे थे 2017 में, फिर जाके 12 में बिगड़ गए। मतलब जो डिप्लोमा किया उसमें बिगड़ गए, डिप्लोमा के बाद तुमने वो किया कॉलेज, उसके बाद तुम थोड़े बेटर हुए, तो ये थोड़ा चीज़ दिख के। हाँ, हाउ टू स्टार्ट डीएसए, अरे ये रहा ना, ये डीएसए का स्टार्ट करना, ये रहा बेस्ट। इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा अगर डीएसए करना है तो। कूल, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ओ भाई, नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं कर सकते। तुम्हें जाना कहाँ था? तुम्हें जाना था पेटीएम, स्विगी, फ्लिपकार्ट। कैसे जाओगे? मतलब ये देखते ही काट देगा। ये सब चीज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? कोई नहीं, मतलब समझो चीजें, समझो। एज अ, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको बेसिक्स आपके नहीं है, आपके बेसिक्स, आपको वॉलंटियर का स्पेलिंग नहीं पता, आप कल को कोड ही नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे कोड में क्या काम है इंग्लिश का? अरे भाई काम है। अगर आप एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ होते हैं, यूआई में होता है। लेट्स से आप फ्रंट एंड इंजीनियर बन गए, आपको समझ में ही नहीं आएगा वो टेक्स्ट में क्या डिस्प्ले करूँ। आप फ्लिपकार्ट के यूआई में टेक्स्ट डिस्प्ले कर दोगे, टुडे इज मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, ब्लॉकबस्टर का नाम ब्लॉकबस्टर, ब्लैक बस्टर, कुछ ऐसे लिख दोगे तो कैसे चलेगा? तो ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा काम करो ये सब चीज़ों पे। काफ़ी सॉफ्टवेयर है जो इंग्लिश भी ठीक करती है। बाद बाकी ये बहुत ही बैड लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है एकदम पढ़ने का। बिल्ड फीचर वेयर टू पीपल कैन प्ले एंड देयर हाई स्कोर विल सेव इन लोकल स्टोरेज। वाह, नहीं नहीं नहीं, ये सब करके तो टिक टैक टो बना के आप अगर फ्लिपकार्ट में काम करना चाहते हो तो बड़ा दिक्कत है। और क्या ही दिन आ गए, टिक टैक टो को ऊपर रखा जा रहा है। और ई लर्निंग वेबसाइट नॉट श्योर क्या है, बट अगर ये क्रिएटेड वेबसाइट यूजर कैन सी, इसको नीचे रखा जा रहा है। भाई यही दिन चाहिए। कोई नेक्स्ट में जाते हैं। ओके सॉरी, 197 था ना। टुडेज बूम ब्लास्टर डे है क्या? रोस्टिंग और रिविंग, अरे मतलब अब कुछ कुछ ऐसे रेज्यूमेस होते हैं, मैं क्या करूं? देखो मैं ना, आई आई डोंट हैव अ शुगर कोटिंग। मैं जो हूँ वो हूँ, लाइक आई डोंट हैव एनी शुगर कोटिंग। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बोल दे रहा हूँ, बिना कोई वो के क्या बोलते हैं, कट के। जो आ रहा है दिमाग में बोल दे रहा हूँ। हेलो सर, आई एम अ सेकंड स्टूडेंट परसिंग बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगेन बैचलर्स का नहीं 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 नहीं, बीसीए का नहीं, बीसीए का तो नहीं रिव्यू करने वाला। नो पॉइंट, नो पॉइंट इन रिव्यूइंग बैचलर्स। 81, 81 भाई, 81 का है। Striver woke up and choose violence. Bro please shout out hi अवे व्हाट्स अप। 904 भाई, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं आज तो। कितने लोग कहाँ से आ गए भाई? 117 पूरा ही रिव्यू कर दो, इंसान हूँ या क्या? क्या समझ के रखा है? अभी यार सुबह 8 घंटा काम करके आया हूँ, 8-9 घंटे। निशांत का है, ओह निशांत। Amazon, Microsoft, Flipkart, SD बनना है। आई एम वेल वर्स्ड विद एल्गोरिथम and have been part of 2 startup and have an experience of 11 months. Okay, part of 2 startup, but you have to be better while writing it. You have to be better while writing it. बेइज्जती सुनने सब आ गए। हाँ मतलब ऐसे ही समझो, समझो। ये कौन सा नंबर है रे? ओ अच्छा, तुमने एडिट कर दिया, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। वही मैं बोला ये कैसा नंबर है? ये इंडिया का ही है ना। लाइक एंड शेयर भी करो। एक सेकंड रुको, अभी थोड़ा पानी पीने दो, फिर रिज्यूमे रिव्यू करते हैं। 40 मिनट से बकवास कर रहा हूँ। अरे नहीं मतलब बीसीए, अरे बीसीए करके आप नहीं जा सकते अमेज़न, तो क्या फायदा रिव्यू करके? अब अगर नहीं हो भाई, बीसीए अलाउ ही नहीं करता अमेज़न, मैं बीसीए का रिज्यूमे रिव्यू करके मैं क्या कर लूंगा? भैया व्हाट्स योर रोल इन द कंपनी? तोड़ फोड़ मचाना। अरे मेरा रोल, आई 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 जस्ट कोड। कोड तो करते हैं और बाद बाकी बक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे बहुत मस्ती वस्ती हम लोग बहुत सारा पूरा दिन वही करते रहते हैं, इधर करो वो करो सारा। मतलब फ्लोर हम लोग का एक फ्लोर है, तो हमारा टीम पूरा आता है क्योंकि हमारा टीम का एवरेज एज ना 25 है। तो सारे यंग इंजीनियर्स हमारी टीम में है, बाकी टीम में थोड़े एजेड है, 35-40 वाले। हमारा टीम कोई 24 का है, कोई 25 का है, कोई 26 का है, कोई 27 का है, कोई 22 का है। पूरा यंग टीम है, सब आता है। सब आके जो उत्तम पटंग मचाते हैं ना भाई, मतलब पूरा फ्लोर में हल्ला। गजब मस्ती करते हैं हम लोग। इसलिए तो मैं कल लिखा था ना पोस्ट में 8 बजे आता हूँ। मैं मतलब डिनर करता हूँ, फिर उनके साथ मस्ती करता हूँ, करके बहुत लेट हो जाता है। मेरा भी रिज्यूम है, मेरा रिज्यूम ये रहा ना, ये देख लो। ये मेरा रिज्यूम है, थोड़ा सा बस मैंने डेटा को ऊपर नीचे कर दिया। वर्क लाइफ बैलेंस, अरे भाई नहीं बनाते हम वैसे वीडियोस। ये हमारा जॉनरा नहीं है, हमसे नहीं होता।
फर्स्ट डे एट गूगल, 1 मंथ एट गूगल, 2 मंथ एट गूगल, 3 मंथ एट गूगल। नहीं नहीं, ये एक वीडियो बना दिया भाई, मतलब ऑफिस एक्सपीरियंस ऑफ गूगल, ठीक है। अब फिर कभी बनाएंगे 1 साल बाद, तब समझेंगे। कहीं मे बी स्विट्जरलैंड के गूगल ऑफिस जिंदगी में गए। स्विट्जरलैंड मुझे जाना है, तो मैं स्नो गिरने का वेट कर रहा हूँ। तो जब स्नो गिर जाएगा तो स्विट्जरलैंड जाऊंगा, तो मे बी आई कवर दैट स्विट्जरलैंड ऑफिस, बिकॉज इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफिस। लाइक यूएसए का गूगल ऑफिस तो है ऊपर, लेकिन अब ब्यूटी की आप बात करो तो जो स्विट्जरलैंड का गूगल ऑफिस है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफिस इन दी वर्ल्ड। तो आई थिंक वो कवर करूंगा इफ आई गो टू ज्यूरिक, बट मे बी आई गो ज्यूरिक। व्हाई विल आई यूज द रिज्यूमे? अरे मुझे भी अप्लाई क्यों करना है? मैं आई डोंट यूज, मे बी व्हेन आई गो ज्यूरिक आई विल मेक अ वीडियो ऑफ ज्यूरिक्स ऑफिस। आई थिंक आई विल मेक दैट, आई एब्सोल्युटली लव दैट ऑफिस। गूगल इंडिया आएंगे, बट अब मतलब अब इंडिया में आके शूट करना इज लाइक थोड़ा ऑकवर्ड आ जाएगा। मतलब मैं मतलब आई विल गो गूगल इंडिया, बट अब मैं 2-3 दिन ही जाऊंगा, उसमें भी जाके कैमरा उठा के अगर शूट करने लगूँ तो पीपल विल बी लाइक, ये आया नहीं, ये ऑफिस घूमने नहीं है, ये वीडियो बनाने आया है इधर। वो वाला इमेज नहीं है भाई, मतलब वो वाला इमेज नहीं बनाना है। तो ऐसे नॉर्मल कोई 2-3 फोटो खींच लूंगा वो ठीक है, बट वीडियोस बनाना नहीं है। ठीक है, चलो। Okay, Nishant, I'll be in Bangalore. I'll mostly be in Bangalore in December. तो Bangalore आएंगे तो मिलते हैं लोगों से। Okay, cool. Excel Minds Jobs, पक्का ये कंपनी का नाम है? Full stack web developer, worked as a full stack developer in building। नहीं नहीं, इंडिया तो आएंगे भाई, इंडिया तो आएंगे, वापस तो इंडिया ही आना है। नेक्स्ट साल I'll mostly move next year. Worked as a full stack developer in building a website, getanyhelp.com, okay, integrated secret। काफी पॉइंट्स, इसको थोड़ा सा ट्रिम करके 3-4 पॉइंट्स पे लिखने की कोशिश करो। पढ़ने का मन नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू आर वर्किंग एज अ फुल स्टैक। Internship experience, being part of a team that successfully create a portal for marketing team to get the information about the student, generate a lead and inquiry, and convert a lead to an inquiry। ठीक है, ऊपर से गया बट ठीक है। क्रिएट अ बैकएंड सिस्टम ऑफ लॉगिन वेयर एम्प्लॉयज कैन गेट इनसाइट, सिक्योर द एपीआई। ठीक है, मतलब थोड़ा ओवर ड्रैग्ड है, शॉर्ट करो, ओवर ड्रैग्ड है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बीसीए। कहाँ जाना है? 81 Amazon माइक्रोस नहीं होगा भाई, बीसीए में बहुत टफ हो जाता है। बीसीए देखते ही नहीं लेंगे। एमसीए करो, एमसीए, अरे कर लो यार, एमसीए 2 साल ही तो पढ़ना है, और थोड़ा और पढ़ाई कर लो। ट्राई करो एमसीए पढ़ने का, नहीं तो बहुत दिक्कत है। बीसीए करके बड़े स्टार्टअप से शायद जा सकते हो, गूगल वगैरह, बट ऐसे बहुत मुश्किल होता है अनलेस अनटिल यू आर वेरी गुड कोडर। अगर मतलब तुम्हारा जो मुझे दिख रहा है कोडर भी, मतलब तुम थोड़े फुल स्टैक वाले हो, कोडर भी उतना हो नहीं, मतलब 500 प्लस है, बट कुछ ऐसा तोड़ा नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज प्लीज एमसीए कर लो। 2 साल ही होता है ना आजकल एमसीए तो। एमसीए तो 2 साल होता है। मेरे फ्रेंड ने भी एमसीए किया, तो ही इज नाउ गेटिंग इंटरव्यूज एट ऑल दीज डिफरेंट कंपनीज। सो ट्राई टू डू एन एमसीए। वंस यू डू एन एमसीए, कोई मना नहीं करेगा। बीसीए देखते ही वो काट देते, क्योंकि आप जब गूगल या फिर अमेजन का पोर्टल खोलते हो, रिक्वायरमेंट्स पे साफ साफ लिखा है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और एन इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, लिखा है, अंग्रेजी में लिखा रहता है, तो समझ रहे हो। कूल। 200, अरे यार ये क्या आ गया, 242 आ गए हैं। 198, 198 में कौन है? किसने भरा है लास्ट की तरफ? सुभाष अमेजन जाना चाहता है। कॉन्फिडेंस लेवल इंफिनिटी। 2-3 लाइन लिखो अपने बारे में। इट्स गुड, खोल लो। अलग लेवल। मैं ना गुड नहीं माना, मैं गंदा देखो रोस्ट करने वाला हूँ अगर गुड नहीं हुआ तो। चलो, पहला तो भाई आईआईटी बॉम्बे का नहीं, अच्छा ही होगा। देख रहे हो, केमिकल इंजीनियरिंग, इट्स गुड। आईआईटी बॉम्बे अगेन वेरी वेरी वंडरफुल। तो जब आप आईआईटी बॉम्बे के हो, इट्स सच अ ह्यूज टैग, राइट? इट्स गुड के जगह इतना भी, मतलब ठीक है, मान रहे हो आईआईटी बॉम्बे के हो, तो इतना भी लाइक यू शुड नॉट राइट लाइक दिस विल जस्ट बी एरोगेंट। एंड ट्रस्ट मी, आईआईटी बॉम्बे का जो टैग है, इट्स वेरी बिग। आई अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन क्लास 12, आईआईटी बॉम्बे इज अ वेरी बिग थिंग। But when you're asking a referral from someone, if you go that arrogant, it's good. It's like, ठीक है भाई, कहीं और खोज रहे रेफरल सीधा। आई नो यूल गेट अ रेफरल फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट केमिकल इंजीनियरिंग हो तो शायद नहीं भी मिल सकता है।
तो प्लीज बी केयरफुल विद दीज थिंग्स, ठीक है। IIT बॉम्बे ईयर 2023 सीपीआई भी बहुत खराब है, केमिकल इंजीनियरिंग में सीजीपीए भी काफ़ी खराब है, डीप लर्निंग इंटर्न और बॉश ग्लोबल में, ठीक है। एम मिनिमाइज ड्रॉप, यहाँ ना थोड़ा देख सकते हो, मतलब थोड़ा नंबर्स अगर ऐड करो तो सही रहेगा, थोड़ा सा नंबर्स यहाँ ट्राई करो ऐड करने का। अप्रोच इमेज इमेज ट्रांसलेशन, ठीक है। यानी ये मेरा फील्ड तो नहीं है, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट आई एम गेटिंग एन आइडिया दैट यू हैव डन समथिंग ऑन डीप लर्निंग। वेयर डू यू वांट टू गो? Amazon, Lightstone Technology, letter of coding processing contribution. Nice, nice. Looks like you are an out and out ML guy, या फिर डीप लर्निंग की प्रोजेक्ट्स। काफी अच्छा लिखा हुआ है, very well written, like the points, for everyone watching out here, I think if you are explaining your projects, this is how you should, not 7-8 points, not 7-8 points, 3 points, this is how you should write। कितने अच्छे से देखो लिखा हुआ है, इससे बोल दे कि ब्लॉकचेन का बना है, एंड नीचे लिख दिया इसको यूज करके मैंने स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स बनाया है, एंड ये यूज करके ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। जनरेटेड रिसिप्ट मैंने इससे किया, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। शॉर्ट है बट क्रिस्प है, जो एक डेवलपर होता है उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्यों बना हुआ है, ठीक है। मतलब शायद कॉलेज स्टूडेंट को नहीं आएगा, बट जिसने काम किया उसको समझ में आ जाएगा, बाद में इंटरव्यू में डिस्कशन हो जाएगा, बट दिस इज हाउ यू शुड राइट इट। यूज दिस टू क्रिएट सो एंड सो इन माय प्रोजेक्ट, राइट। बस इतना लिखना होता है, क्यों बनाया वो बाद में डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। बट किस लिए यूज हुआ है, क्या यूज है, और इसने एक बहुत ही स्मार्ट चीज किया है। मुझे ना, अगर मैं ऐसे दूर से भी देखूं ना, मुझे दिख रहा है कि इसने जैंगो, रिएक्ट जेएस, अजाइल, बीएलई पे काम किया। कैसे? इस बंदे ने बोल्ड कर दिया, मुझे पता है। देखो ये चीज इस बंदे ने किया, विच इज वेरी गुड, विच इज अगेन वेरी वेरी गुड। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बंदे से आप ये चीज ले सकते हो कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। लिंक भी दिया हुआ है हर चीज का, आई थिंक लिंक है। एक सेकंड, लिंक क्यों नहीं है? ठीक है, मतलब लिंक ऐड कर देना, इसका शायद लिंक नहीं ऐड किया है, लिंक ऐड कर देना। इट्स गुड, इट्स गुड। डिपार्टमेंट एकेडमिक, डिजिटल मीडिया मैनेजर। आई एम नॉट श्योर इफ दिस शुड बी एडेड। पब्लिसिटी मतलब सेंस नहीं बनता, रिमूव कर दे यार। इतने अच्छे रिज्यूमे में अगर तुम ये ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं, अनलेस एंटिल यू आर गोइंग फॉर अ मैनेजमेंट रोल, मतलब दो वैसे वाले चीज तुम ऐड किए हो, व्हिच इज काइंड ऑफ वियर्ड, ठीक है। एक 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 तक भी समझ में आता है, दो तीन उसमें नहीं। आई विल नॉट गो फॉर इट। रेटेड यहाँ पे कमी है। अगर 1515 मुझे याद नहीं है कितना होता है कोड शेफ पे, 1515 कितना होता है कोड शेफ पे, मैं भूल गया हूँ सब कुछ, पता है कितना होता है कोड शेफ पे, कितना होता है कोड शेफ पे। The projects are good. Project and the experience is good, not the DS Algo part. I did not say about DS Algo. I said the project and the experience is good, because what he has done is he has gone into somewhere and he has actually worked on something, at least on paper, that he has written. It seems that he has worked on something. Even on the projects, he has done something quite good for his age. And somewhere DSA is missing, which is required, because what I clearly see is he is looking for an SD1 at Amazon. SD1 at Amazon doesn't cares about what you have done in deep learning or shit. वो इन्वर्टेड बाइनरी ट्री पूछेंगे, वो आपको बाइनरी सर्च ही पूछेंगे, वो आपको ग्राफ का डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम ही पूछेंगे। उनको फक छोड़ो, मैं वर्ड में लेके नहीं जा रहा हूँ, छोड़ो उनको, डैश फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ जाओ। 260, oh we god, that's a lot of watching, isn't it? कितना रिव्यू करें, आप लोग बोलो कितना रिव्यू करा। इफ डेटा पॉइंट्स अगर सही है, अगर जो लिखा हुआ है सही है, और अगर प्रोजेक्ट सही है, तो प्रोजेक्ट वाइज बहुत अच्छा स्टार्टअप्स वगैरह में अच्छा खासा मिल जाएगा। कितना और देखो, अभी देखो मेरे पास टाइम है 10-15 मिनट, उसके बाद ये लोग मेरे को निकाल देंगे, बोलेंगे नहीं और नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे टाइम दिया 11 बजे तक, सॉरी नहीं 10:30 बजे, कितना बजे तक टाइम दिया, 11 बजे तक, हाँ 11 बजे तक टाइम दिया है। 21 नहीं, एक अच्छा नंबर, ठीक है 2 या 3, चलो 2 या 3 करते हैं, चलो ओके।
267 है, मैट डॉट रैंडम 267। किसका किस्मत? 215 वाले का किस्मत खुल गया है। चलो 215 कहाँ है? 15 निरंजन रेड्डी, बंदे को गूगल जाना है। डेटा, अच्छा भाई डेटा एनालिस्ट मेरा एरिया नहीं है, सॉरी, आइडिया ही नहीं है। डेटा 62 आया। चलो कोई और दूसरा नंबर नहीं है। अच्छा यथार्थ, भाई मतलब अमेजन ही जाना है, क्यों जाना है? मैं मानता हूँ अमेजन जाके वीडियोस बनाना है, बट अमेजन ही क्यों जाना है? हद है, मतलब अमेजन ओनली। अरे भाई ऐसे वन डायमेंशनल मत हो। पता चला अमेजन का इंटरव्यूअर, उसका दिमाग सटका हुआ होगा, तुमको पहले राउंड में ही निकाल देगा। बोलेगा नहीं तू तू भाई गलत अप्रोच बोल रहा है, तू सही अप्रोच बोल। क्या कर लोगे? ऐसा ये गलत है, इसको हटाओ। ऑनली नहीं होना चाहिए, अमेजन एंड अदर्स। ठीक है, ये माइंडसेट ही खराब है। अमेजन ही जाना है। दुनिया में बहुत कंपनीज है, बहुत अच्छे पेमेंट आती है हर जगह। अमेजन में उल्टा वर्क कल्चर बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा वर्क कल्चर खराब है। ठीक है, हाय यथार्थ, XYZ कॉलेज टॉकिंग अबाउट माय स्किल्स, आई एम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। ये लिखने से नहीं होगा ब्रो। कैसे हो बताओ, बताओ कैसे हो? कहीं तो लिखा ही नहीं है। ऐसा ना ओपनिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ थोड़ा सा डेटा भर देना। ठीक है, चलो तुम अमेजन जाना चाहते हो तो तुम्हारा देखते हैं अमेजन जैसा है कि नहीं कुछ। अरे भैया आज का GFG POTD मेरा कोड फट जा रहा है। प्रॉब्लम ऑफ द डे। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद मैं डिनर बनाने जाऊंगा, तो आज तो कुछ नहीं है। आज तो मैं थका हुआ। यथार्थ कुमार झा, ओके। बाय द वे ऑन द फर्स्ट हैंड, लेट्स सी। उतना मुझे अच्छा वाइब तो नहीं आ रहा है, बट देखते हैं। GPA 8.8, 6। ये क्या है यार? ये क्या है? इधर तुम 6 बाई लिखो, ये क्या है? 2019 to 2023 काफी है, या फिर जून टू जुलाई जो भी लिखना है लिखो। 90 91 ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। इतना रंग, मतलब अतरंगी फॉन्ट्स क्यों यूज किए हो? पहले ये थोड़ा सा फॉन्ट्स को पे ध्यान दो यार। मतलब इफ यू आर गोइंग प्रोफेशनली, कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, उसको फॉलो करो। उतना इटा ये 1 2 वो सब फॉन्ट का जरूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस, अगेन मतलब वर्क एक्सपीरियंस हेडिंग है, उससे बड़ा तो ये इंटर्न का मुझे दिख रहा है। मतलब ये छोटा होना चाहिए ना इससे लॉजिकली, अगर ये इसके अंडर है तो ये भी ठीक करो। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड अप्लाइड वेरियस प्रोग्रामिंग, लर्न अबाउट वेरियस सॉफ्ट स्किल्स। नहीं नहीं नहीं, वेरियस सॉफ्ट स्किल्स तुमने सीखा तो मैं क्या कर लूं? और वेरियस प्रोग्रामिंग एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट 2023 में पास आउट होने वाले हो। आई थिंक फाइनल ईयर है। ये इंटर्नशिप तो डालने लायक ही नहीं है, प्रोजेक्ट्स अच्छा डालो। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन लैब मेड यूजिंग HTML। अरे क्या बनाया हो ये तो लिखो। एडिट विजुअल, अरे ये भाई ये मैं बता रहा हूँ, इसको ना इंडिया का वो घोषित कर देना चाहिए, नेशनल प्रोजेक्ट। जैसे नेशनल एनिमल होता है, इसको इंडिया का नेशनल प्रोजेक्ट बोल दो। सॉर्टिंग विजुअलाइजर, ये टू डू ऐप, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सबको ना नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। हर रेज्यूमे में मिल जाता है। समझो, अगर तुम IITs के नहीं हो, तुम IITs के नहीं हो कि तुम्हारे रेज्यूमे में एक प्रोजेक्ट होगा तो कैंपस में आके ले जाएंगे। तुम बाहर से आ रहे हो, तुम एक Tier 3 कॉलेज से हो। जब तुम एक Tier 3 कॉलेज से हो, इधर तुम एक तगड़े तगड़े बनो, मतलब तगड़े CP वाले बनो, कि भाई देखते ही उसको ले ले। जैसे मेरे साथ मैं तगड़ा तो नहीं था, लेकिन मैं इतना अच्छा था कि हाँ लोग मेरे को इंटरव्यू दे देते थे। ठीक है, सेम बनो। अगर वो नहीं बन सकते हो तो फुल स्टैक डेवलपमेंट अच्छे से करो, या फिर बैक एंड डेवलपमेंट अच्छे से करो। ये विजुअलाइजर तुमने क्या कर रहे हो यार? ठीक है चलो देखते हैं, अभी मैंने प्रोजेक्ट्स पे तो देखा। और एक चीज, अगर तुम्हारा CP का प्रोफाइल तगड़ा है ना, तो प्रोजेक्ट्स को ऊपर मत रखो, CP के प्रोफाइल के अचीवमेंट्स को ऊपर रखो। जैसे तुम हो वैसे ड्राइव करो। जो इंटरव्यूअर या फिर जो रेज्यूमे रिव्यूअर देख रहा है, उसको तुम वैसे ड्राइव करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब आई शुड ड्राइव देम अकॉर्डिंग टू माई विश। लाइक अगर तुम मेरे रेज्यूमे देखते हो तो अचीवमेंट्स में देखो, मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, वो हर एक अचीवमेंट पड़ेगा ना। वो बोलेगा कि हाँ भाई बंदा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाईएस्ट रेटिंग, रैंक्ड अंडर, qualified the ACMI CPC, secured all India rank of this in long challenge, secured all India rank of this in code vita, written over so many articles,
तो ये पढ़ते पढ़ते ना उसके दिमाग में आ जाएगा कि ये बंदा अच्छा कोडर है। तो तुम्हें ड्राइव करना होगा। अगर तुम ऐसे लिखोगे ऐसे अगर लिखोगे सॉफ्ट स्किल्स, मेरा ड्राइव तो मतलब शुरू होने से पहले खत्म हो गया। समझ रहे हो? जरूरी है यार ये, मतलब टाइमर, एंड्रॉइड ऐप, स्टार्ट स्टॉप रीसेट फंक्शनलिटी, कोई प्रोजेक्ट है? नहीं, अच्छा करो यार, ना फॉर्मेटिंग कुछ नहीं, जैसे तैसे लिख दियो। ग्लोबल रैंक ऑफ 76 इन कोड शेफ। खोलूंगा तो div 3 हुआ ना, मैं बहुत पीटने वाला हूँ। ये नहीं, रैंक लिस्ट ऐड करना होता है, इसके जगह रैंक लिस्ट ऐड करो ब्रो। थोड़ा बेटर करो यार, बेटर करो, क्या कर रहे हो? ओके, लास्ट दो रिव्यू करेंगे, ठीक है? 1K, इम्प्रेसिव, नाइस। 29 स्टार्टिंग वाले, कौन किसने भरा था 29? यश, चलो काफी है। Amazon DSA शेयर चैट मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड। डंजो तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड है। SD आई हैव अ स्ट्रॉन्ग। अगेन यहाँ पे जब आप एक मैसेज लिखते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग को बैकअप करो डेटा के साथ। डेटा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी बोल सकता हूँ यार मैं तोड़ हैकर हूँ, आई एम अ वेरी गुड हैकर, कैन यू प्लीज रेफर मी? डज इट साउंड गुड? डेटा डेटा डेटा, ठीक है। चलो और रिज्यूमे खोलते हैं। ये लास्ट है क्योंकि मैं ना थक गया, और ये हो गया इनका 1 घंटा भी, मैं पहले ही आ गया था आज तो। ऑन अ फ्रंट, looks good, looks good, very crisp, properly aligned, everything very well done. Okay, let's look at the resume. LinkedIn clickable है, GitHub भी clickable है, perfect. Nice. So इसको थोड़ा बेटर भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे LinkedIn को यहाँ पे पुश कर दिया, लोगो लगा दिया, GitHub का भी लोगो लगा दिया, तो सेक्सी लगेगा। एजुकेशन नाइस, MCA, चलो इज्जत बढ़ गई। MCA किया बंदे ने, कॉमर्स, वाओ वाओ। ओ नहीं, कॉमर्स कॉलेज में साइंस कब से पढ़ाने लगे? ये कौन सा कॉलेज है भाई? सभी होता है, ये किसी को पता है ये कॉलेज के बारे में? भाई कॉलेज का नाम बदलो तुम लोग। ओ भाई सही में साइंस पढ़ा रहे हैं। अच्छा चीज था, नाइस। मुलुंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आप साइंस पढ़ के आए हो? आपस में ये ट्रोल है। ये कैसा कॉलेज है? मैं बोल रहा हूँ कि आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स कॉलेज, बट आई हैव डन BSc। वाओ। स्किल्स, लैंग्वेजेस, हाँ समझ गया समझ गया। डजंट मैटर हु यू आर, एट द एंड ऑफ द डे इट्स नाइट। ट्रू ट्रू, एट द एंड ऑफ द डे बेड पे ही सोना है। लैंग्वेजेस HTML PHP Kotlin JavaScript SQL Java C++ Dart Node.js React, में बहुत कुछ आता है तेरे को। फ्रेमवर्क्स, गेट experience, SIDH solution and IT internship on site, okay. ठीक है, तुम UI में, इन फिग्मा में UI बनाए हो, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड, अच्छा तो उस UI को इम्प्लीमेंट भी किए हो, नाइस। बट UI का कुछ फोटो अगर डाल देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। कनेक्टेड द API विद REST, कनेक्टेड द ऐप विद REST API, वही तो करते हैं, कुछ अलग लिखो, कॉमन सेंस है ये तो। परमिशन ऑफ इंटरनेट एक्सेस, इम्प्लीमेंटेड अलर्ट, ठीक है ठीक है। डायलॉग बॉक्स, SITH solution for IT trivia internship project, worked for Kenyan influencer marketing social, ये हम भी देखना चाहेंगे कौन सा ऐप था। प्रोजेक्ट्स सॉरी जूम, जूम वेब क्लोन लाइव, इट्स वेब, नाइस। हाँ लाइव है, नाइस। कुछ और ना खुल जाए, रहने दे। ऐसा ही अगर इतना, ओ ओके, नाइस, इम्प्रेसिव। अब मैं इसको ट्राई तो नहीं करूँगा, बट ठीक है, सॉकेट से बनाए होगे, सही है। ये भी आई थिंक काफ़ी जगह है, बट ठीक है, नाइस नाइस वर्क। थोड़ा इसको फैंसी बना सकते हो, वर्क ऑन इट, ट्राई टू मेक इट फैंसी, ठीक है। ड्रग स्टोर एप्स, नाइस नाइस। क्राउड ऑपरेशन बनाया हो थोड़ा सा,
CRUD ऑपरेशंस के साथ थोड़ा सा ऐड कर देते फ्रेम, सॉरी, टेक स्टैक क्या यूज़ किया तो सही हो जाता है। इस सेंटेंस को टेक स्टैक के साथ मर्ज करके लिखो, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? स्पॉटिफाई, ठीक है। अगेन सेम चीज़, 3 अगर लिख रहे हो मेक श्योर करो कि सारा आना चाहिए। अचीवमेंट 3 स्टार ऑन लीड कोड, मैंने बोला था ना, हर रिज्यूमे मैंने सुबह से जितने सारे रिज्यूमे खोले हैं, हर रिज्यूमे में तुम्हें क्या दिखा? 300, 400, 500 सॉल्व्ड। वही ट्रेंड बन गए, सब वही लिख रहे हैं क्योंकि सब वही कर रहे हैं। तो इसलिए अब तुम्हें कहीं भीड़ से अलग जाना पड़ेगा। भीड़ से अलग तुम तभी जा सकते हो, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। सुबह का कॉन्टेस्ट, इधर का कॉन्टेस्ट, उधर का कॉन्टेस्ट, जिधर हो रहा है कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करो। 3 में 3 सॉल्व करो, 4 में 4 सॉल्व करो, अच्छे रैंक लाओ, वर्ल्ड रैंक लाओ, इंडिया रैंक लाओ, वो सब लिखो। अब वो चीजें ही बेटर लगेंगी। 500, 300 बाजार में बिक रहे हैं। मतलब अगर मैं लॉजिकली सोचूं, मेरे डीपी सीरीज में 50 वीडियो है, ग्राफ में मैं 50 डाल रहा हूँ, ट्री में 50 डाल रहा हूँ, कोई तीनों प्लेलिस्ट भी देखेगा ना, उसका भी 150 सवाल हो जाएंगे लीड कोड पे या जीएफजी पे। तो इसलिए थोड़ा बेटर करना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है? जैसे ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। कहाँ है, कहाँ है लिंक, कहाँ है लिंक, कहाँ है प्रूफ, कहाँ है प्रूफ? ऐसा कैसे मानूं? प्रूफ, प्रूफ भेजो, ठीक है? प्रूफ भेजना। भाई कोड स्टूडियो में 5,000 लोग कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, 2,000 3,000 करते हैं। थोड़ा देख के लिखा करो नंबर्स भी। पार्टिसिपेटेड इन मेटा हैकर कप, स्मार्ट इंडिया। पार्टिसिपेशन इज नॉट एन अचीवमेंट। इफ यू हैव डन समथिंग वेल देन यू कैन राइट इट। पार्टिसिपेशन इज नॉट एन अचीवमेंट, ठीक है? ठीक है, गुड वन। बट क्या कंपनी टारगेट कर रहे थे? शेयर चैट डंजो के लिए I think yeah, it's good one to have an interview, but I think you will struggle. I'm not sure you'll struggle or not, but yeah, I think good one. I think yeah, overall, if I would have been in Amazon, मैं मना तो नहीं करता। uh, मतलब अगर तुम Amazon इंजीनियर्स को अप्रोच करोगे, आई डोंट थिंक तुम्हें दिक्कत, मतलब ठीक है, अगर 10 को मैसेज करोगे तो शायद 4 या 5 जन तुम्हें दे देंगे रेफरल्स। तो या pretty decent, थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना जो मैंने बोला है, बाकी कोई ना। कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होता है ना, जब आप रिक्वायरमेंट्स में देखते हो तो उसमें लिखा रहता है कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट। तो मतलब क्या होता है कि बहुत सारे में जगह में क्या होता है कि आपने शायद बीटेक करके आए हो, ठीक है, तो वो मान जाएंगे। जैसे बहुत जगह क्या होगा कि बंदे के पास शायद शायद कोई प्रॉब्लम था तो उसने बीसी एमसीए किया है, वो भी मान जाएंगे। बहुत जगह आपको ऐसे भी दिखेगा कि उसने 12 के बाद पढ़ाई छोड़ दी, बट जाके वो 4-5 साल कंप्यूटर में ही काम किया है, मतलब जाके डेवलपमेंट ही किया है, डीएसएल को भी किया है, प्रोजेक्ट भी बनाया है 4-5 साल, तो उसको भी इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं मान लेते हैं। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, और नहीं यार और नहीं, थक गया। तो जैसे मैं एक स्टोरी, इसको अभी शेयर हटा के बताते हैं, ठीक है? स्टॉप शेयरिंग कैसे होता है? हाँ, चलो स्टोरी बताता हूँ। हाँ, मेरे टीम में ना एक एक जन है, ठीक है, 22 साल का है वो। तो उसके पास पता है, उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था। तो जब वो गूगल में अप्लाई किया ना, तो उसको पूछा गया डिग्री क्या है। तो जब उसका हायरिंग कमेटी में गया तो हायरिंग कमेटी ने बोला इसके पास तो डिग्री नहीं है इक्विवेलेंट। तो हायरिंग कमेटी ने उसको इसलिए कंसिडर किया क्योंकि उसके पास 3 साल का इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस था। तो 1 साल का ड्रॉप आउट प्लस 3 साल का इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस मान के गूगल ने बोला कि बंदा अच्छा है, इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं क्योंकि इसने 3 साल कंप्यूटर इंडस्ट्री पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही काम किया है, तो उसको इक्विवेलेंट मान लिया। अब उसने काम भी वही किया था, जैसे उसने काम भी वही किया था जो उन्हें चाहिए था। तो दे गॉट विदाउट लाइक, वो जो बंदा है गॉट इनटू द कंपनी विदाउट अ डिग्री, समझ रहे हो? तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं से उससे मेकअप कर रहे हो, बीसीएमसीए करके मेकअप करो, या फिर आप 4-5 साल बाहर काम करके मेकअप करो। मतलब यू शुड हैव डन द सेम थिंग्स समवेयर डाउन द लाइन व्हेन दे से बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब वो होता है, ठीक है? कुछ और पूछना है? और हो गया यार, इंग्लिश में बोल, अरे ट्रांसलेट कर लेना। आज हो गया, आज थक गया बहुत। For me, the Google's recruiter reached out to me on LinkedIn. They were reaching out to me from along, but I was not interviewing because
I wanted to complete 1 year at media.net, because if you leave before 1 year, you have to return the joining bonus. And for me at media.net, the joining bonus was quite a big amount. So I did not want to return it. So I was waiting for me to complete 1 year. So apparently, once I completed 1 year, I replied to the recruiter that yeah, I can interview now. I got my interview scheduled. Cool. What am I eating? Haldiram bhujia. I was eating Haldiram bhujia. तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी रेज्यूमे रिव्यू में. Thank you for joining. In case you haven't checked out my channel, Take You Forward is the name. Like it goes by the name Take You Forward. जाके check out कर लेना. YouTube channel है, where you'll find all the DS algo content. Subscribe कर लो उसको. And if you haven't checked out our DP series SD sheet, सब जाके check out कर लेना. You'll get a lot of DS algo content on that channel. Premium quality है, काफी premium quality है. Beginner level questions नहीं है, बहुत deep में जाके पढ़ाया है मैंने. तो जाके चेकआउट कर लेना. एंड हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर देना. इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.